بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری بیوی بہت نیک اور شریف تھی، حافظ قرآن تھی۔ میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے یہ سزا ملی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی، اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی بہت اچھی پرورش کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا۔ اور ایسا موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور مایوس ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے نہ دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے خراب ہو گئی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی تھیں، مگر میری ساری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سائے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلے ہوئے تھے اور دن کے سمے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جیسے ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا بہت ہی تیز بارش ہونا شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جھکڑ چلتے رہے۔ میرا بچہ بھی اس وقت میرے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی رکے ہوئے تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا، اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے، اور اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا، اور اس سمے میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھیں اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا، لیکن اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا مجھے خواب میں بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میرے بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں مایوس ہو گیا اور کتنی ہی دیر تک اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا، اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے کو ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک عورت سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو میری بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو بہت ہی نیک عورت تھی۔
मेरी नज़र में तो मेरी बीवी की कोई गलती ही नहीं गुजरी थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है। और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी की हकीकत खुली तो मेरा दिल तक फट गया था। मेरा नाम एहसन है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे, मैं, मेरे माँ-बाप और मेरी एक बेवा फूफी, जो मेरी दूसरी माँ जैसी थीं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था और हम 3 लोग बाकी रह गए थे। माँ को खोने का गम मुझ पर फिर भी बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थीं। मेरी फूफी और मेरे अब्बा ने मेरा गम भुलाने के लिए मुझे बहुत सहारा दिया था और हर वक़्त मेरे साथ लगे रहते थे। वो दोनों कोशिश करते थे कि मुझे अकेला ना होने दें। मैं हमेशा से ही उनकी तवज्जो का वाहिद मरकज़ रहा था। फिर मैं भी कुछ वक़्त के बाद सँभल गया था और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। पढ़ाई से फ़ारिग हुआ तो मेरे अब्बा और फूफी को मेरी शादी का शौक़ सताने लगा। मैंने हामी भरी तो ज़ोर-शोर से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फूफी को अपने मरहूम शौहर के ख़ानदान में एक लड़की का ख़्याल आया, जिससे फूफी का अभी मिलना-जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वो लड़की कम उम्र में ही बहुत संजीदा और नेक थी। उसके वालिदैन नहीं थे और वो 2 बहनें थीं और एक सिर्फ़ छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन-भाई को अकेले पाला था। हालाँकि वो खुद भी बहुत बड़ी नहीं थी, वो नमाज़ी और हाफ़िज़ कुरान थी। घर में बच्चियों को कुरान मजीद भी पढ़ाती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए कुरानी ताबीज़ में बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमाकर अपना घर चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे देखे बिना ही उसके लिए हामी भर ली और फूफी ने पहली फुर्सत में ही उसके ख़ानदान के बड़ों से मशवरा करके मेरा रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखवाई थी कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरी होने तक उन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मैंने तो सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो कर दिया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका असीर हो गया। वो ना सिर्फ अच्छी सीरत की थी बल्कि बहुत ही खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद दिन रहकर ही मैंने उसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी में सारी बातें मेरी फूफी की बताई जैसे ही थीं। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम और सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था। बस सिर्फ औलाद की कमी थी जो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अपनी बीबी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफ़ात पा गए। अपने अब्बा की वफ़ात और अपनी बेऔलादी ने मुझे बहुत ज़्यादा बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र अब ख़त्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियाँ और नेमतें याद दिलाती थी। वो मुझे सब्र की ताकीद करती रहती थी। मैं हैरान था, वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे ख़ानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि तुम्हारी औलाद क्यों नहीं हो रही। मेरी फूफी तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लगी थीं और मेरी बीबी को बातें सुनाने लगी थीं, जैसे ये सब मेरी बीबी के हाथ में हो। मैं अपनी फूफी को समझा समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से लड़ने लगी थीं कि तुम्हें इलाज करवाना चाहिए ताकि तुम्हारे यहाँ कोई औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। अब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे। अब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और फूफी ने मेरी बीबी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात भी रखी थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीबी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई। ये सब बहुत अचानक हुआ था और मैं सदमे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्जी की मोहताज ही कब होती है, जिसका जब वक्त आ जाए उसे अल्लाह के पास लौट कर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीबी की कब्र की हालत और उस पर आया अजाब मुझे धचका पहुंचा गया था। हर मुश्किल हाल में मैंने अपनी बीबी को साबिर शाकिर देखा था। मुझे ढूंढने से भी कोई कमी नजर नहीं आती थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीबी की हकीकी अमल से अल्लाह नावाकिफ़ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीबी के साथ रहकर भी उसे जान क्यों नहीं पाया। मुझे ये दुख भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता, ताकि मैं उसे उस गुनाह से रोक लेता और इस अजाब से बचा लेता। मैं पछतावे से अंदर ही अंदर घुट रहा था। उन्हीं दिनों घर में क्या चल रहा था, मेरा बेटा रातों के वक्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीबी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ करता रहता था। एक रात फूफी अचानक मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी फूफी ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी।
मेरी बीबी को मरे अभी बमुश्किल 20-21 रोज ही हुए थे और मेरी फूफी मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थीं। मैं फूफी से नाराज होने लगा कि उन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। फूफी मुझसे कहने लगी वो बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। उन्हें भी मेरी बीबी की मौत का दुख था। जब मैंने फूफी की इन बातों का कोई भी असर न लिया तो वो कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम अपना बेटा खुद संभालो या उसी को दे दो जो उसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फूफी की बात पर हैरान हुआ था। मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फूफी ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फूफी से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। फूफी ने बताया कि तुम्हारा बेटा इतने रोज से तुम्हारी मरहूम बीबी की छोटी बहन संभाल रही है। वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभला रहे। पर मैं फूफी की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को भी देने को तैयार नहीं था। मगर फूफी का दिन रात मुझ पर जोर बढ़ता ही जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरे बेटा दिखाती जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फूफी की जिद थी कि मैं अपने बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह कर लूं और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फूफी की जिद सुनता रहता। एक रोज़ फूफी ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी में ही बता चुकी थी कि उसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी इसी कोशिश में थी कि उसके भाई के बाहर जाने से पहले उसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वो अकेली न रह जाए। मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आया था और मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आया कि अगर मैं मज़ीद इनकार करूँगा तो मेरी साली मेरे बेटे को सँभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कुँवारी बैठी रह जाएगी या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को सँभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फूफी तो वाक़ई बीमार और कमज़ोर हो गई थीं और उनकी बीनाई भी कम होती जा रही थी। मैं सोच-सोच कर परेशान होने लगा और थक-हार कर मैंने अपनी फूफी की बात मानने का फ़ैसला कर लिया और एक रोज़ काम पर जाने से पहले फूफी को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती हैं कर सकती हैं। मुझे उनके फ़ैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फूफी को खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थीं। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया था कि फूफी ने तो मेरे निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। तभी मैंने खामोशी से निकाह ख्वाह के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था और अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज थी या नहीं। ये भी नहीं जानता था कि वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था वैसे दूसरी बीवी से भी कभी मुतमईन हो पाएगा। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। मैं अपनी बीवी की बहन से निकाह तो कर लिया था, लेकिन उससे कोई रिश्ता कायम नहीं कर सका था। मेरे दिल में ये बात आती थी कि ये भी गुनाह है कि मैं उसे शौहर होने का हक नहीं दे पा रहा था। उसे पत्नी होने का जो हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि आज तक मैंने अपनी दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी दीन मामलात की बहुत समझ रखती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और वो पर्दा आज उस लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज़ मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया था। वो तो अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जो कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवज्जो किया था, वो उसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपनी बहन की मौत से खुश हो और उसे उस तरह खुश और इतने इत्मीनान से देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ते हुए मैंने गुस्से से कहा कि तुम इतनी खुश और मुतमईन किस बात पर हो? मेरे सवाल पर उसके चेहरे के अजीबो-गरीब से भाव हो गए थे। वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि तुम्हें अपनी बहन की मौत का अफसोस नहीं है? उल्टा उसकी जगह लेकर इतनी खुश कैसे रह रही हो, जबकि तुम्हारी बहन जवानी में ही मौत के मुंह में जा चुकी है और उसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि उसकी कब्र में अजाब झेलना पड़ रहा था।
मैंने अपनी मरहूम बीबी का ये राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने खोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह से रो पड़ी। मैं उसे यूं रोता देखकर बौखला गया। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकित कर दिया था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही डर था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा काम करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती भी थी। जब मैंने अपनी बीवी से हकीकत पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैं जब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़े कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज़ हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने यूं ही कुछ आयात पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़ये के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई थी। वो नेक बीबी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। उसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन ताबीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिख कर दे देती थी। वो लोग कुछ रुपये देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था, मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का गुर्दा फेल हो गया। दूसरे गुर्दे की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था और हमारे पास उसके इलाज की रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। उन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया और उससे बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता है मेरी बहन कुछ ऐसा ताबीज़ दे दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो उसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि वो ये गुनाह का काम था। मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए ना जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और मेरे भाई का भी आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर रोज ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबे के लिए ताबीज बनवाते और मेरी बहन को ढेरों पैसे देकर चले जाते। एक रोज एक औरत मेरी बहन के पास आई। वो औरत अपनी बहू को अपने बेटे की जिंदगी से दूर करना चाहती थी और उसके लिए वो एक ऐसा ताबीज बनवाने आई थी कि उसकी बहू मर जाए। उसकी बहू प्रेग्नेंट थी। मैं उस समय अपनी बहन के पास ही बैठी हुई थी। मुझे लगा कि मेरी बहन ये घटिया काम हरगिज नहीं करेगी, लेकिन मैं दंग रह गई जब मेरी बहन ने उस औरत से काम करने का वादा कर लिया और बदले में उससे 1 लाख रुपये लिए। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। अब मैं अपनी बहन पर नज़र रखने लगी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि मेरी बहन ये बहुत ही गलत काम कर रही है, लेकिन वो ऐसा क्या करती है कि लोगों के सारे नाजायज़ काम पूरे हो जाते थे। मैं जानना चाहती थी। इसलिए एक रोज़ मैंने छुपकर अपनी बहन को ताबीज़ बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज़ पर उल्टा कुरान लिख रही थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल होने लगी और बहन को रोकने लगी। उसे समझाने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली कि अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई। मैंने अपनी बहन से कहा कि इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर आप ये हराम काम तो ना करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं अपनी बहन को समझाती रही, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत जान चुकी थी, मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गवा दिया था। उसकी ज़िंदगी अच्छी थी, वो कुरान भी पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। मैं उसे डराती, मैं उससे कहती कि तौबा की मोहलत दिए बिना ही वो मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा। और देखो मेरा कहा सच हो गया। अपनी बीवी की बताई हुई बातें सुनकर मैं गुमसुम हो गया। मैंने अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ वो दुनियावी पैसे के लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी हाफ़िज़ कुरान न होने के बावजूद भी अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीबी से नवाजा था। काला इल्म करने वाले और कराने वाले दोनों की अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। भूल कर भी ये गुनाह कबीरा ना करना चाहिए, मगर गलत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में ही उसका अजाब दिखा देगा और फिर तुम्हारी आखिरत भी ख़राब करता है। अल्लाह से डरो और हमेशा वही करो जो अल्लाह को पसंद है। हमेशा नेक काम करो। जिंदगी और मौत देने वाला तो अल्लाह की जात होती है। अगर उसने तुम्हारे अपनों को तकलीफ दी है या उसे कोई बीमारी दी है तो उसमें भी सब्र का दामन थामे रखो, क्योंकि हो सकता है क्योंकि उस बीमारी के बाद भी अल्लाह ताला ने उसे मौत दे दी तो वो उसके निजात का जरिया हो। क्योंकि हमें पता नहीं, अगर इंसान को पैदा किया है तो अपने पास अल्लाह ताला बुलाने का हक भी रखता है।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।